सभी का स्वागत है जीतू भैया की क्लासेस में। जीतू भैया की क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, जितने भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं, दे ऑल आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is rational numbers and another one is irrational number. First of all, what is rational number? Rational numbers are those numbers which can be represented in the form of P by Q, where Q is not equals to 0 and HCF of P and Q is 1. That means rational numbers are those numbers which can be represented in the form of simplest form. यानी कि अगर मैंने 2/10 लिखा है तो that is not a rational number. Why? Because 2/10, 2 and 10 का HCF is 2, not 1. HCF of P and Q is always be 1. क्या होना चाहिए? HCF हमेशा 1 होना चाहिए। रेशनल नंबर्स के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एंड Q is never equal to 0. Irrational numbers which cannot be represented in the form of P by Q, जिन्हें हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, they all are irrational numbers. Now, rational numbers, some examples of rational number: -5, -7/3, 0, 5/6, they all are rational numbers because they all can be represented in the form of P by Q. Now, someone ask, -5 कैसे रैशनल नंबर है? -5 is a rational number because -5 can also be written as -5/1. It is in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and HCF of P and Q is 1. So -5 is also a rational number because -5 can be written as -5/1. तो जिनको हम P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे irrational numbers, example √2, √3, √5. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पाई। पाई कैसे रैशनल नंबर है? जबकि कई बच्चे कहते हैं पाई की वैल्यू तो सर होती है सर 22/7। कितनी है पाई की वैल्यू? 22/7। बट 22/7 इज अप्रॉक्स वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पे क्या आना चाहिए? अप्रॉक्स। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 है, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। वो क्या है? एक अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3.14 एंड सो ऑन है, यानी चलती जा रही है। ना ही उसके डेसिमल प्लेसेस रिपीट होते हैं, ना ही टर्मिनेट होते हैं। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर बट 22/7 इज एन रैशनल नंबर क्योंकि इसके डेसिमल प्लेसेस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। नेक्स्ट इज rational number divided into further integers and fractions. Integers which can be represented in the form of number line 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. इनके बीच के numbers integers नहीं होते। 0, 1, 2, 3 and so on, -2, -3 and so on. Fraction which can be represented in the form of which can be written in the form of P by Q where Q is not equal to 1. And integers further divided into negative numbers and whole numbers. Whole numbers are those numbers 0, 1, 2, 3. Whole numbers further divided into natural number. Natural number is 1, 2, 3 and so on. Natural number are further divided into even numbers and odd numbers. Even numbers are those numbers which are in the table of 2, यानी जो 2 के टेबल में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8। और जो 2 के टेबल में नहीं आते दे ऑल आर ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स या होल नेचुरल नंबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर. Prime numbers are those numbers which have only two factors, 1 and number itself. Example 2, 3, 5, 7, 11 and so on. Composite numbers are those numbers which can be more than two factors, number itself and one and another number. जैसे ही एक और फैक्टर आ जाता है that means it is a composite number. Now next, रियल नंबर्स को हमने किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स दो फॉर्म में हो सकते हैं। अगर मैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो रैशनल नंबर्स दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग
are those rational numbers that means decimals are terminate meaning जब decimal places खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब डेसिमल प्लेस चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है बट इन रिपीटिंग टेलीकास्ट, जैसे 3 3 3 3 3 चलते ही जा रहा है। तो जब 3 3 3 चलता है आता है तो 9th क्लास में हमने डिस्कस किया कैसे डिनोट करते हैं उसको बार से। तो दैट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो टर्मिनेट हो जाए दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब कितने प्लेस पे वो टर्मिनेट हो जाएगा ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैंने 17/8 लिखा तो मैं देख के बता सकता हूं कि ये कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा। मैंने तो बता दिया 3। अब आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? तो क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 8 कैन बी रिटन एज 2⁻³ तो डिनोमिनेटर q अगर 2 और 5 की प्लेसेस में ही लिखा जाए सिर्फ और सिर्फ तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। अगर 2 या 5 के अलावा उसमें कुछ और आ जाए तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 का क्यूब, दैट मींस इट इज टर्मिनेटिंग। अब कितने प्लेस तक टर्मिनेट होगा ये कैसे पता चला? टर्मिनेट कितने प्लेस तक होगा ये फाइंड आउट करने के लिए जो भी पावर n या m में मैक्सिमम होगी उतने प्लेस तक टर्मिनेट होगा। यहाँ पे पावर 2 की कितनी है 3 into मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, तो दैट मींस इट विल टर्मिनेट अप टू 3 प्लेसेस। कितने प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा? 3 प्लेसेस तक। क्यों? क्योंकि 3 और 0 में मैक्सिमम कौन है 3, दैट मींस दिस रेशनल नंबर 17/8 टर्मिनेट अप टू 3 प्लेसेस। इस तरीके से मैं किसी भी रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकता हूँ दैट इज रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो 1/15। 15 को जब मैं 15 की जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा 3 into 5। 3 into 5 में क्या आ गया 3 आ गया, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कुछ भी डिसाइड करते हुए सबसे पहले रैशनल नंबर में ध्यान क्या देना है कि उन दोनों का HCF होना चाहिए, यानी ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। नाउ सीक्वेंस यानी कि कौन किसके अंदर कंटेन करता है, all natural numbers contain in whole numbers, all whole numbers contain in integers, all integers contain in rational number, all rational number contain in real number, all irrational numbers also contain in रियल नंबर। रियल नंबर अब तक के सबसे बड़ा शो है, यानी सबसे बड़ा जो हमें सिस्टम पता है दैट इज रियल नंबर। जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं रियल नंबर्स। नाउ सबसे पहला टॉपिक क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा says that given positive integer a and b there exists unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r 0 is less than and equals to r less than b। कहने का मतलब क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा says that in division dividend equals to divisor into quotient plus remainder। डिविडेंड को क्या कह दिया हमने a, डिवाइजर को b, क्वोशिएंट को q एंड रिमाइंडर को r, एंड वी ऑल नो रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर, दैट मींस रिमाइंडर इज लेस देन b एंड रिमाइंडर हमें सबको पता है कि 0 या 0 से बड़ा होता है, तो रिमाइंडर लाई बिटवीन 0 to b। 0 is less than and equals to b is less than b। ओके जैसे अगर नॉर्मल हम 16 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 16 इज द डिविडेंड, तो a हो गया, डिवाइजर इज 3 सो b हो गया। a इक्वल्स टू 16, b इक्वल्स टू 16, डिवाइड किया 16 को 3 से तो रिमाइंडर आया 1, दैट मींस 16 कैन बी रिटन एज 3 into 5 plus 1। a इक्वल्स टू b q plus r। a इक्वल्स टू b q plus r। q is here 5 and r is 1 is unique for a I equals to 16 and b equals to 3। यानी कि जो q और r हैं वो हमेशा यूनिकली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे दो वैल्यू एग्जिस्ट करता है। नाउ एल्गोरिथम, अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके HCF फाइंड आउट करना है, यानी हम उसे क्या कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं HCF। अब देखते हैं किस तरीके से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। HCF of two numbers 4052 and 12576।
HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? बाय परफॉर्मिंग सम स्टेप्स वी गेट द आंसर, यानी हम किस तरीके से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF। तो कुछ नहीं करना, डिवाइड करते चले जाना है एंड फाइनली जो डिवाइजर बचेगा वो हमारा क्या होगा? HCF। किस तरीके से? जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या बन जाएगा? डिविडेंड। स्मॉलेस्ट नंबर इज डिवाइजर व्हेन डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो क्वेश्चन आ गया 3 एंड रिमाइंडर आ गया 420। जो हमारा डिविडेंड था वो उसका रोल खत्म हो जाएगा, जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, दोबारा डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया? 272। ठीक है, अब जो हमारा दोबारा से डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। अब रिमाइंडर क्या आया? वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर। और जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। इस तरीके से हम स्टेप्स परफॉर्म करते चले जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा जो भी डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा? HCF। वो क्या हो जाएगा? HCF। ये इस चीज को परफॉर्म करने का वे है। अब लिखते किस तरीके से हैं? 12576 इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी a इक्वल्स टू bq प्लस r की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन सेज दैट a इक्वल्स टू bq प्लस r। वी नो कि a इक्वल्स टू bq प्लस r इज अ पार्ट ऑफ डिवीजन, इसलिए हमने उसको यूज करके वहां पे रिजल्ट लिख सकते हैं। 12576 इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस 420, a इक्वल्स टू bq प्लस r। इसी तरीके से हर डिवीजन के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया a इक्वल्स टू bq प्लस r। तो फाइनली व्हेन रिमाइंडर इज 0 we get the divisor is 4 and this is HCF by using Euclid division lemma. Hence HCF of 4052 and 12576 is 4 by using Euclid division algorithm. अब हम कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि HCF है क्या। तो HCF is nothing but highest common factor and LCM is least common multiple. फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6, यानी कि 6 किस किस की टेबल में आता है? दे आर द फैक्टर्स ऑफ 6। एंड मल्टीपल यानी उस नंबर की टेबल में कौन कौन आता है? दे आर मल्टीपल्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीनिंग कि 4052 एंड 1256 बहुत सारे नंबर्स की टेबल में आते होंगे, बट ऐसा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कि इन ये जो दोनों नंबर हैं ये उनकी टेबल में आते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये भी आता और ये भी आता, दैट इज nothing but 4. 4 is known as HCF, that means highest common factor. Thank you, thanks a lot. देखते रहिए जीतू भैया की क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।